Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning, good Sir. morning. Good morning to all of you. Good morning. How are you? So, dear students, how are you? I hope you all are fine. So, as you got the new timetable, and according to this new timetable, on this month, your geography class will be run 4 days in a week. Not Monday, not Tuesday, Wednesday onward. Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, 4 days in a week, your geography class will be run. As this is the new information, I think you all have got it according to new timetable. So, dear students, on Tuesday means yesterday, your class will not run according to new timetable, and now today is Wednesday. Perhaps very soon your school will be start to offline class, but I'm not sure. We all have wait and watch till 6 Feb. 6 फेब तक जो है हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, उसके बाद फिर जो है आपको सूचना मिल सकती है आपके स्कूल के खोले जाने के उपलक्ष्य में. सो डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसन टू मी? माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? क्लास 11th. Yes, sir. सबको सुनाई दे रहा है Yes, बेटा? sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. आज इस लेसन को हम लोग समाप्त करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, और समय रहेगा तो हम लोग नया चैप्टर भी शुरू कर देंगे. ठीक है बेटा? टुडे इज 2 Feb. Composition and structure of the atmosphere. Composition and structure of the atmosphere. तो बेटा हम लोग स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे, और स्ट्रक्चर में हम लोग थर्मोस्फेयर पढ़ रहे थे. ठीक है बेटा? There are different layer of the atmosphere, and each and every layers we have to discuss, whatever it may be, the troposphere, stratosphere, mesosphere, and thermosphere. Almost 3 or 4 layers we have to be discuss about it, and its characteristics about all the different layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, और thermosphere. Thermosphere के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. Thermosphere, this is the 4th layer of the atmosphere. 4th layer. ठीक है बेटा? ये 4th layer है, ये एटमॉस्फेयर का 4th layer है. ठीक है बेटा? तो जब हम लोग थर्मोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं तो हमने बताया कि थर्मोस्फेयर, this is the 4th layer of the atmosphere, and it is, it is located between 80 to 400 kilometer from the surface of the earth. ठीक है बेटा? सरफेस ऑफ द अर्थ से 80 to 400 किलोमीटर. जैसे ये मान लो, ठीक, ये 80 किलोमीटर है.
80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर, ठीक है। इस हाइट के बीच में द लेयर विच वी कॉल इट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, इसको हम लोग थर्मोस्फेयर कहते हैं बेटा, ठीक है। दिस इज द फोर्थ लेयर। बिलो दिस थर्मोस्फेयर देयर इज मेसोस्फेयर। इसके नीचे क्या है बेटा, मेसोस्फेयर, विच इज लोकेटेड बिटवीन 50 टू 80 किलोमीटर हाइट, जो 50 से लेकर के 80 किलोमीटर हाइट के बीच में है, दिस इज मेसोस्फेयर। एंड द थर्ड लेयर एंड द फोर्थ लेयर, द बाउंड्री विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, देयर इज मेसोस्पॉज। उस बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, मेसोस्पॉज कहते हैं, मेसोस्पॉज, उसको हम लोग मेसोस्पॉज कहते हैं, यानी मेसोस्पॉज, ठीक है बेटा। means mesosphere and thermosphere. Mesosphere is the third layer. The boundary which is separated from the third layer to fourth layer means mesospause to thermosphere. Mesosphere to thermosphere, that is mesospause. उसको हम लोग क्या कहते हैं, mesospause, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। तो थर्मोस्फेयर की हम लोग बात करते हैं जब, when we talking about the thermosphere, we can say that it is located or situated between 80 to 400 किलोमीटर from the surface of the earth, ठीक है। 80 से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच में the layer which we get of the atmosphere, that is thermosphere. This is very much important layer for us. Why it is very much important for us? It is very much important for us just because of the electrical particles in the form of the ions are present here. इस लेयर में आयंस पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, आयंस, ठीक है बेटा, आयंस पाया जाता है। जो इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स जो यहाँ पर पाए जाते हैं वो आयंस के रूप में पाए जाते हैं, और आयंस के पाए जाने की वजह से इसको हम लोग एनोस्फेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग एनोस्फेयर भी कहते हैं, ठीक है। सो देयर इज अनदर नेम ऑफ थर्मोस्फेयर, दैट इज एनोस्फेयर। इसको हम लोग एनोस्फेयर भी कहते हैं, थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स आयंस के रूप में यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको एनोस्फेयर भी कहते हैं। एनोस्फेयर का यूज क्या है, व्हाट इज द एनोस्फेयर? तो एनोस्फेयर का यूज ये बेटा कि हमारे पृथ्वी पर जितने भी कम्युनिकेशन जो संचालित होते हैं, ठीक है, थ्रू टेलीविजन, थ्रू रेडियो, थ्रू सैटेलाइट्स, ठीक है, सोशल मीडिया में तुम लोग जितने भी जो है कम्युनिकेशन, अपने मैसेज को तुम लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करते हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब हम लोग किसी को मोबाइल से डायल करते हैं तो एक वेव्स निकलता है, ठीक है बेटा, वेव्स निकलता है। वो वेव्स जो है सीधे थर्मोस्फेयर से जाता है, थर्मोस्फेयर में जाता है, और थर्मोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर के जो है फिर हमारे पृथ्वी पर आता है, ठीक है। और इस तरह से जो है हम दूर संचार या कम्युनिकेशन को बनाने में सफल हो पाते हैं, ठीक है बेटा। हालांकि वो वेव्स हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, वो इनविजिबल है, लेकिन वो वेव्स एटमॉस्फेयर के इस लेयर में जाने के बाद, ठीक है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के फिर आता है, और हम लोग जो है कम्युनिकेशन करने में जो है सफल हो पाते हैं। और ये ऐसा संभव इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो पार्टिकल्स इसके जो आयंस के रूप में पाए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो तुम लोग जितने भी जो है अपने मन पसंदीदा तुम लोग जो है चैनल देखते हो टेलीविजन में, वॉट एवर द चैनल्स यू हैव सीन, योर फेवरेट चैनल्स यू हैव सीन इन योर टेलीविजन और रेडियो, फेवरेट सॉन्ग यू हैव लिसन, ठीक है, इवन इफ यू डायल टू समवन, ठीक है, and communicate to them, you listen their message and communicate their message just because of this layer, that is thermosphere, ठीक है बेटा। So this is very much important for us to maintain the communications on the surface of the earth, ठीक है, just because of the layer that is thermosphere or ionosphere. You just think that if the absence of the thermosphere or ionosphere, will I maintain the communication system properly? क्या हम लोग जो है communication system को maintain कर सकते थे? No, we can't maintain, ठीक है बेटा, हम लोग maintain नहीं कर सकते।
और सूचना, कम्युनिकेशन आज के इस एरा में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यू ऑल आर नो। सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए, सिविलाइज्ड पर्सन के लिए, ठीक है, सूचना का आदान प्रदान, कम्युनिकेशन का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, शायद ये मनुष्य के विकास के लिए अति आवश्यक जो है पहलू है। ठीक है बेटा, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो यू ऑल ऑफ नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द थर्मोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा क्लास 11th? Yes, sir. Yes, sir. क्लास 11th Yes, sir. Yes, sir. इस लेयर की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई बेटा, थर्मोस्फेयर आयनोस्फेयर की? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है बेटा। above 400 kilometer there is last, or you can say that the top layer of the atmosphere, that is exosphere। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्जोस्फेयर कहते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं इसको, बहिर्मंडल सबसे बाहरी मंडल है एक्जोस्फेयर। उसको हम लोग जो है सबसे अंतिम जो है लेयर कहते हैं उसको, एटमॉस्फेयर का लास्ट या टॉप लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है बेटा, दैट इज एक्जोस्फेयर। Actually, it is started from at the height of the 400 kilometer, but what is the top height? It is not identified. ठीक है बेटा, इसका top height कितना है वो अभी identify नहीं है। In some books it is mentioned that 800 kilometer, some others books it is mentioned that 4000 kilometer. ठीक है, some others books it explain that near about 10,000 kilometer. So we know that it is started at the height of the 400 kilometer from the surface of the earth, but what is their top height? It is not fixed। ठीक है बेटा, but one thing that we know that कि above exosphere there is space, start space। ठीक है बेटा, स्पेस तुम लोग सुने होगे, अंतरिक्ष तुम लोग सुने होगे, तो एक्जोस्फेयर के बाहर क्या है, ठीक है, उसको हम लोग स्पेस कहते हैं। ठीक है बेटा, तो एक्जोस्फेयर के बारे में जो जानकारी हमारे पास वो बहुत कम है, और एक तरीके से ये जो लेयर है वो मानव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जो है इसके बारे में जो जानकारी है वो बहुत थोड़ा है। ठीक है बेटा, सो ऑल दिस अबाउट द डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ, ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में तुम लोगों ने देखा, दैट इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है बेटा, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये जो है डिफरेंट लेयर तुम लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में देखा, ये उनकी जो है विशेषताएं भी जो है तुम लोगों ने देखा। ठीक है, सो ऑल दिस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाउ आई थिंक this is the last topic for this lesson, that is the structure of the atmosphere। ये structure of the atmosphere का last topic था। ठीक है बेटा, so I think you all have got it। क्वेश्चन आंसर देख लें बेटा इसका, क्लास 11th Yes, sir. क्वेश्चन आंसर देखिए Yes, इसका। sir. Okay, sir. Yes, sir. चलो, you all have open page number 74 पेज नंबर ओपन करो बेटा। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, which one of the following gas constitutes the major portion of the atmosphere? That is Nitrogen, sir. Nitrogen, sir. nitrogen 78% बेटा। ठीक है, atmospheric layer important for human being is Ionosphere, sir. Ionosphere. बेटा देखो ये किस सेंस में पूछ रहा है, बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर की यदि हम लोग बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है बहुत एक तरीके से कह सकते हैं बहुत डिस्टरबेंस लेयर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है तुम्हारा जो है रेनफॉल, ठीक है, क्लाउड का बनना, रेनफॉल का होना, ठीक है, लाइटनिंग का होना, ये सारे के सारे जो है क्लाइमेटिक जो कंडीशन है, ठीक है, वो सब जो है इसमें होता है। ठीक है बेटा, स्ट्रेटोस्फेयर में तो एक तरीके से देखोगे रेनफॉल जो है वो मानव के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है,
तो इस तरह से देखा जाए तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है मानव के लिए बहुत जरूरी है। ट्रोपोस्फेयर की यदि हम लोग बात करते हैं, सॉरी टोपोस्फेयर की यदि हम लोग बात करते हैं तो टोपोस्फेयर में हमने कहा कि रेनफॉल का बनना, लाइटनिंग होना, ठीक है, और तुम्हारा जो है ये तुम्हारा जो है जितने भी एटमॉस्फेरिक या जितने भी तुम्हारे क्लाइमेटिक जो है विशेषता है वो सब जो है इसी लेयर में होता है, ठीक है। तो टोपोस्फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटोस्फेयर की यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग ओजोन लेयर जो है पाया जाता है, ओजोन गैस पाया जाता है। तो एक तरीके से ओजोन गैस, ओजोन लेयर भी जो है मानव के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। मेसोस्फेयर मध्यमंडल, इसका कुछ विशेष इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन एनोस्फेयर की बात करते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो एक तरीके से ये जो चारों जो तुम्हारे जो है जो लेयर दिए हुए हैं, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, मेसोस्फेयर, मध्यमंडल, एनोस्फेयर, ठीक है, आयन मंडल। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये इन चार में से तीन जो लेयर हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मानव के लिए, ठीक है बेटा। मेसोस्फेयर को छोड़ दिया जाए तो, बट व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तुम लोग भी सर्च करना। जहां तक मुझे लगता है, हाँ, जहां तक मुझे लगता है ट्रोपोस्फेयर जो है इंपॉर्टेंट जो है लेयर है, ठीक है। आउट ऑफ दीज थ्री, इन तीनों लेयर में से सबसे इंपॉर्टेंट ट्रोपोस्फेयर है। क्वेश्चन थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन होना चाहिए विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक लेयर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट की जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो इंपॉर्टेंट तो वैसे ही तीनों लेयर है, तीनों लेयर महत्वपूर्ण है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट की यदि हम लोग बात करते हैं दैट इज ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। एक वर्ड की कमी की वजह से ये कंफ्यूजन जो है यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड हम लोग देखेंगे। सी सॉल्ट, पोलन, एश, स्मोक, सूत, फाइन सॉइल, these are associated with what? डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल हमने बताया था कि डस्ट पार्टिकल इंक्लूड ऑल दिस कंपोनेंट, ठीक है। डस्ट पार्टिकल में ये सारे के सारे जो है कंपोनेंट्स इंक्लूड है, ठीक है। फाइन पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल्स, पोलन, ठीक है, स्मोक, सूट, ठीक है। सलाइन, जो सी सॉल्ट है तुम्हारा, जो सलाइन जो वाटर है, ठीक है, उसके भी जो साल्ट के जो पार्टिकल्स है वो भी जो है एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है। तो ये सारे के सारे जो है तुम्हारे जो है क्या है, ये डस्ट पार्टिकल के कंपोनेंट्स हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट इज ऑक्सीजन गैस इज इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब ये है 120 किलोमीटर कि एटमॉस्फेयर वन, क्या बोल रहे हो बेटा? 120 किलोमीटर सर, 120 की, हाँ 120 किलोमीटर, ठीक है। एट व्हाट हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की किस ऊंचाई पर जो ऑक्सीजन है वो एक तरीके से नेग्लिजिबल है, यानी न के बराबर है, ठीक है। तो दैट इज 120 किलोमीटर। तो जब हम लोग ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं तो ऑक्सीजन गैस जो है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से लेकर के टिल 120 किलोमीटर के हाइट तक जो है पाया जाता है। ऑलमोस्ट हमें ये पता है कि सबसे ज्यादा जो है इसका जो कंसंट्रेशन है, it is highly concentration near the surface of the earth, means near the surface of the earth. But as we move from the upward, the quantity of the oxygens are going to be decreased, but at the height of 120 kilometers from the surface of the earth, it having negligible amount, ठीक है। ये बिल्कुल न के बराबर होता है बेटा। लेकिन वहीं पर यदि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में हम लोग देखते हैं कि इट इज फाउंड अप टू द हाइट ऑफ 90 किलोमीटर, ये 90 किलोमीटर तक पाया जाता है एट द हाइट ऑफ द मोर देन 90 किलोमीटर, ठीक है, वी कांट गेट इट। तो इन द केस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इट इज 90 किलोमीटर, इन द केस ऑफ द ऑक्सीजन वी कैन से दैट इट इज 120 किलोमीटर, वी फाइंड इट 120 किलोमीटर, बट अबव 120 किलोमीटर it is having negligible amount. Which one of the following gas is transparent to incoming solar radiations and opaque to outgoing terrestrial radiations? Means carbon dioxide. हाँ, absolutely right. Carbon dioxides, absolutely right. Carbon dioxides. Carbon dioxide is a gas, ठीक है, which allow
टू एंटर द सोलर रेडिएशन। ठीक है बेटा, वो सोलर रेडिएशन को अलाउ करता है आने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो सोलर रेडिएशन होता है उसके जो वेवलेंथ होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, सो द सोलर रेडिएशन विच इज कमिंग फ्रॉम द सन, ठीक है, इट हैविंग वेरी बिग वेवलेंथ, in this case carbon dioxide is allow of it, but when the solar radiations are hit on the surface of the earth and reflect from the surface of the earth, it's convert into the large wavelength to small wavelength। पृथ्वी से जैसे ही टकराता है, पृथ्वी से टकराने के बाद जो है वो लार्ज वेवलेंथ, आते समय तो लार्ज वेवलेंथ रहता है, लेकिन जो जाते समय जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ में हो जाता है। और इन दिस केस जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है। ठीक है बेटा, और इसी वजह से पृथ्वी पर जो है टेम्परेचर को हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लेकिन कल्पना करो कि इफ द कार्बन डाइऑक्साइड, द क्वांटिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग वेरी मच इन द एटमॉस्फेयर, सो इन दिस केस व्हाट विल बी द हैपन? तो होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड्स एब्जॉर्ब मोर सोलर रेडिएशन एंड ड्यू टू दिस द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ आर गोइंग टू बी इंक्रीज। और टेम्परेचर जो है पृथ्वी का क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। और जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से जो है जो आइसबर्ग है वो पिघलना शुरू कर देंगे, और जो सी जो लेवल है, सी का जो वाटर लेवल है, ठीक है, वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या? स्पेशली द कोस्टल एरियाज आर वेरी मच, ठीक है, यू नो दे आर गोइंग टू बी ड्रॉन, वो जो है डूब जाएंगे। ठीक है, या जो है वो एक तरीके से उनके लिए बहुत ही नेचुरल क्लाइमेटिस के तौर पे जो है सफर करना पड़ेगा। समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर है क्या? इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस, इन स्पाइट ऑफ इट वाटर वेपर as well as dust particle। ठीक है, you all guys explain about the different kinds of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, ozone, neon, neon, krypton। ठीक है, you all have mention one line importance of each gases, one line, so your answer will be completed। what are the element of weather and climate? The elements of the weather and climate, that is temperature, Pressure, that is temperature, that is rainfall, that is air pressures, that is moisture और humidity। ठीक है बेटा, तो इसको तुम्हें एक्सप्लेन करना है। Describe the composition of atmosphere। Composition of the atmosphere। Describe the composition of the atmosphere। तो कंपोजिशन में हमने बताया था बेटा कि एटमॉस्फेयर हैविंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड द कंपोनेंट्स लाइक डिफरेंट गैसेस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वाटर वेपर, नेक्स्ट डस्ट पार्टिकल। ठीक है, ऑल दीज आर हैविंग कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर का क्या है? कंपोजिशन है। तो इसके बारे में तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is troposphere is most important of all the layer of the atmosphere? देखो ये क्वेश्चन में फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, उसी का एक्सप्लेन किया हुआ क्वेश्चन है। why is troposphere the most important of all the layer of the atmosphere? यहां से तुम्हें एक चीज समझ में आ गया कि troposphere is most important। देखो यहां पर most लिखा हुआ है बेटा, दिखाई दे रहा है? क्लास 11। Yes, sir. Yes, sir. देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है why is troposphere the most important। यही बात अभी हमने जो है तुमको क्वेश्चन में फर्स्ट का सेकंड पार्ट में हमने बताया था कि although all these layers are having important but question should be
मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और मोर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। देखो नीचे जो है इसी को जस्टिफाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पॉइंट है, इसी को जस्टिफाई किया गया है। ठीक तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। समझ में आ रहा है बेटा? क्लास 11th। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर Yes, sir. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देख लो क्या कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो है फोर्थ जो है तुम्हारा जो पार्ट देख लो। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट से जो है हमें समझ में आ गया कि जो टोपोस्फेयर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो वैसे सारे मंडल है, ठीक है, सारे लेयर है, सारे मंडल जो है इंपॉर्टेंट है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर की जब हम लोग बात करते हैं दैट इज तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर। तो ना तो तुम लोग जो है क्वेश्चन फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वहां भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दो, एटमॉस्फेरिक लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इससे तुम्हारा आंसर समझ में आ जाएगा, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। समझ में आ रहा है बेटा? 11th क्लास। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो हम लोग फोर्थ जो पार्ट है उसको हम लोग देखते हैं। Why is troposphere the most important of all the layer of the atmosphere? ठीक है बेटा, ट्रोपोस्फेयर को एटमॉस्फेयर का सबसे इंपॉर्टेंट जो है लेयर क्यों कहा जाता है? तो तुम लोग कहोगे ऑल दो ट्रोपोस्फेयर इज द, ठीक है, वेरी डिस्टर्बिंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच आर लोकेटेड बिटवीन हाइट 8 to 18 किलोमीटर। ठीक है, their average height is 13 kilometer. It is most disturbing layer of the atmosphere because too many atmospheric changes are going here, ठीक है, like making clouds, no rainfall, making rainfall or precipitations or lighting, each and everything are happening in this layer. So this is very much important for human being because too much atmospheric activities are going here, and all these atmospheric activities like to make rain here. Rain is very much important for us. Without rain, ठीक है, ecological balance यानी ecology balance we can't able to maintain the ecology। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग बताओगे कि why the troposphere the most important of all the layer of the atmosphere. You get it? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 150 वर्ड। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो इसको जो फुल लेंथ का ये क्वेश्चन है, इसको तुम्हें जो है डिटेल से टैकल करना है। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सेम क्वेश्चन तुम्हारा जो है 30 वर्ड में पूछा था, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब यही क्वेश्चन जो है तुम्हारा जो है 150 वर्ड में पूछा है। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में तुम लोग बताते समय बोलोगे डिफरेंट गैसेस। यहां पर तुम लोग जो है सारे गैसेस के इंपॉर्टेंस को तुम लोग बताओगे, लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, जियोन, नियॉन, क्रिप्टॉन, इन सबके इंपॉर्टेंस को तुम लोग बताओगे। नेक्स्ट वाटर वेपर तुम लोग बताओगे। वाटर वेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो एक तरीके से जो है ब्लैंकेट का काम करता है, तो इसके इंपॉर्टेंस को भी तुम लोग बताओगे। और लास्ट में तुम लोग डस्ट पार्टिकल बताओगे। डस्ट पार्टिकल के बारे में तुम लोग बताओगे कि कंडेंसेशन जो प्रोसेस जो है, ठीक है, वो डस्ट पार्टिकल की वजह से ही होता है। अगर कंडेंसेशन प्रोसेस नहीं होता, ठीक है, तो जो वाटर वेपर है इट इज नॉट एबल टू कन्वर्ट वाटर वेपर इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, and condensation is happening just because of the dust particle which is available in the atmosphere. कोई ना कोई माध्यम चाहिए ना बेटा, एटमॉस्फेयर में कोई ना कोई माध्यम चाहिए जिस माध्यम पर, ठीक है, तुम्हारे जो वाटर वेपर है वो वाटर वेपर तुम्हारा जो है वाटर ड्रॉप्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो सके। कोई ना कोई माध्यम चाहिए, तो वो माध्यम क्या है? दैट इज डस्ट पार्टिकल। ठीक है बेटा, तो डस्ट पार्टिकल के इंपॉर्टेंस को भी तुम लोग बताओगे। इस तरह से तुम्हारा जो ये जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट
Draw a suitable diagram for the structures of the atmosphere and label it. तो structure of the atmosphere, structure of the atmosphere में तुमको जो है ये बताना है, ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में यही तुमको जो है डायग्राम बनाना है, जो हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में बनाया था डायग्राम. और उस डायग्राम में तुम्हें जो है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एग्जोस्फेयर को तुम्हें दिखाना है और उसके जो है विशेषताओं के बारे में जो है तुम्हें, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसकी विशेषता है उन विशेषताओं के बारे में तुम्हें मेंशन करना है. ठीक है, इस तरह से तुम लोग देखोगे तो तुम लोग का जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है बेटा, क्लास 11th. Yes, sir. और कोई क्वेश्चन पूछना है तुम्हें इस लेसन से? नहीं पूछना है? No, sir. चलो, तो हम लोग जो है एक नया लेसन शुरू करते हैं. ये भी बहुत छोटा लेसन है. दैट इज बहुत छोटे छोटे लेसन है बेटा. ठीक है, पहले इसको हम लोग खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम लोग, ठीक, जो थोड़े लंबे लेसन है उसको हम लोग पढ़ेंगे. दैट इज नेक्स्ट लेसन, दैट इज वाटर इन द एटमॉस्फेयर. वाटर इन द एटमॉस्फेयर, 11th चैप्टर. How many times are left? 5. तुम लोग का म्यूजिक का भी क्लास चल रहा है क्या जी? No, sir. म्यूजिक क्लास नहीं चल रहा है? टाइम टेबल में तो मेंशन है म्यूजिक. म्यूजिक मेंशन है कि नहीं है? हाँ, वो ऑप्शनल वाले बच्चों का, हम लोग का पेंटिंग का है. अच्छा अच्छा, चलो. नेक्स्ट लेसन हम लोग पढ़ेंगे बेटा वाटर इन द एटमॉस्फेयर. वाटर वेपर ये अभी हम लोग पढ़े थे, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर हम लोग पढ़े थे. वाटर वेपर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जो है डिटेल्स और पढ़ेंगे. ठीक है, इसलिए हमने जो प्रीवियस चैप्टर में जो है वाटर वेपर के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताया. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, ये सारे के सारे चैप्टर जो है एक दूसरे से लिंक्ड है, सिस्टमेटिकली लिंक्ड है. इसलिए जो है हम तुम्हें जो है इसको जो है सिस्टमेटिक यानी क्रम से न पढ़ा करके जो रेफरेंस के क्वेश्चन है या जो रेफरेंस के टॉपिक है उससे लिंक होते हुए जो है हम चैप्टर तुमको पढ़ा रहे हैं. दैट इज वाटर इन द एटमॉस्फेयर. वाटर इन द एटमॉस्फेयर. Water in the atmosphere. So dear students, in previous lecture or previous chapters you have to study about the atmosphere, composition of the atmosphere, structure of the atmosphere. You have studied about it.